record it. Okay, I will record it also. So we said next step was to have what? The MVT, okay, with variable task, multi-programming with variable task. So we are having a multi-programming where we have a multiple programs going on simultaneously, and but the variable task in this, I'm not creating any partition at all. It's a dynamic. I will create a partition. The above ones were static. Okay, above ones were static, and this one is dynamic. That I'm creating partitions at the runtime. Yeah, when the process comes, we actually divide it. Said Moon, no, is having no camera. Okay, okay, I saw you actually. So in this scenario, whenever the partition comes, whenever the process comes, I create the partition same size of whatever the process is. 100K, I create a 100K partition and so on. So by that, I am creating partition when they come. Only thing is last little bit of memory will be left out. That is the external fragmentation. But here we don't have any chance of internal fragmentation. But we saw that if the processes come and go, there will be like this is this process finishes. It's having this much of size. Then say it was 100K before this free part. Now it's a free space. But we can have a next process which is only 90K, which can accommodate it. 10K is left out. But this is external to partition. It's not an internal to partition. This will lead to the external fragmentation. But then we said, okay, we have the flexibility of moving the partitions because we have created it dynamically. We're not created boot time. We have created these partitions dynamically. So we can change these boundaries. If because I have firstly the whole free space, then I created partitions of my liking. Then when the partitions processes go and come and go, they leave those holes, and then I have to reassign those holes to other partitions. Say 100K का पहले इसने लिया था, जब ये गया तो इसने अब ये छोड़ा, ये पार्टीशन फ्री है अब, ठीक है। लेकिन जब दूसरी प्रोसेस में इसमें डालूंगा वो 100K की नहीं हो सकती है, वो 90K की, 40K की, 50K की हो सकती है। तो जो 100K में से बाकी बचेगा वो अनएलोकेटेड रहेगा, लेकिन वो पार्टीशन के अंदर नहीं है, वो पार्टीशन के बाहर है। जो वहां होता था वो पार्टीशन के अंदर जगह रहती थी। वहां जो फिक्स्ड पार्टीशन आपके होते थे उसमें इसमें ये फर्क है कि जो फिक्स्ड पार्टीशन हमारे पास होते थे उसमें 100K का पार्टीशन अगर हमारे पास था, ये 100K का पार्टीशन था, अगर आपने इसमें 90K का लगा दिया, ये जो 10K है ये पार्टीशन के अंदर रहता था। यहाँ पे ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे 100K का फ्री, जब ये खत्म हो जाएगी ये प्रोसेस, ये 100K की फ्री स्पेस हो जाएगी। इसमें जब हम पार्टीशन नया क्रिएट करेंगे, मान लीजिए 90K का, वो एक पार्टीशन बनेगा 90K का ये वाला, और जो ये स्पेस जो 10K की है यहाँ पे, ये इस पार्टीशन के बाहर रहेगी, ये इसके अंदर जाया नहीं होगी। इसको मैं एलोकेट कर सकता हूँ, इसको मैं एलोकेट नहीं कर सकता। जो यहाँ पे 10K बचे इसको मैं एलोकेट नहीं कर सकता क्योंकि पार्टीशन के अंदर है जगह, ठीक है ना। इसको मैं एलोकेट कर सकता हूँ क्योंकि मैंने 90K का एक पार्टीशन बना दिया, 10K फ्री है, अगर मुझे 10K की जॉब आ गई मैं इसमें डाल सकता हूँ। लेकिन मैक्सिमम टाइम्स जो होता है कि कुछ ना कुछ रह जाता है, छोटी छोटी जगह, जिसमें एक प्रोसेस, जैसे प्रोसेस 20K की, 40K की, 50K की आ गई, वो इसमें नहीं पहुंच सकती। और ओवरऑल मुझे ये 10K इधर, 10K इधर, 10K उधर, 10K उधर करके 40, 50, 60K का या MBs का अगर हम बात करेंगे बच जाता है, जिसमें प्रोसेस पहुंच सकती थी लेकिन अब नहीं पहुंच रही है। तो लेकिन मुझे एक इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि मेरे पार्टीशंस आगे पीछे हो सकते हैं। सो मैं क्या करूंगा, व्हाट आई डू इज द कंपैक्शन। I have the technique called compaction और defrag जिसे आप कहते हो defragmentation। उसमें compaction हम क्या करेंगे, जो भी occupied spaces हैं उनको एक साइड लाएंगे, और जो भी free spaces हैं, जो भी occupied spaces हैं उनको मैं एक साइड लाऊंगा, और जो free spaces हैं उसको एक ही जगह जमा करूंगा, ताकि अगर मुझे कोई बड़ी प्रोसेस आई वो इसमें घुस सकती है। जैसे ना यहाँ पे 10K बच गई थी, यहाँ पे 20K बच गई थी फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 30K या 10K बच गई थी, ये कुल मिला के 50-60K ये कुल फ्री स्पेस में यहाँ पे रखूंगा, ठीक है ना, और जो ऑक्यूपाइड स्पेस है वो टॉप में रखूंगा। तो उससे क्या हो जाएगा कि जो मेरी जो वो 10K इधर 10K इधर थी उसमें पहुंच नहीं रहा था कोई प्रोसेस, अब वो अवेलेबल होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि CPU इज डूइंग द कंपैक्शन मोर देन द जॉब। अब कंपैक्शन हो रहा है मोर देन जॉब, वी आर हैविंग द कंपैक्शन, एंड कंपैक्शन इज वेरी कॉस्टली बिकॉज CPU इज अनअवेलेबल, इट हैज टू डू द फर्स्ट दिस होम टास्क, ठीक है ना, असली काम हो ही नहीं रहा, खाली सफाई हो रही है। सो इसलिए हमने कहा कि नो, दिस इज नॉट द वे टू डू।
we have to go for non-contiguous memory allocation. जो पहला ये वाला था ये contiguous आ रहा था, लेकिन जो भी प्रोसेस आ रही थी, जो भी जॉब थी, वो यहाँ पे आ रही थी. लेकिन अब हमने कहा कि हम करेंगे नॉन कॉन्टिग्यूस. लेकिन नॉन कॉन्टिग्यूस में मैं क्या कर रहा हूं, नवीद कादरी अब आ गया. नवीद कादरी इतना लेट, एंड 16 मिनट्स हो गए क्लास चलते हुए, और अब आप आ गए. ओपन अप योर कैमरा नाउ. नाउ व्हाट वी डू इज वी वांट टू ब्रेक द प्रोसेस इनटू पेजेस. नाउ दिस इज अ नॉन कॉन्टिग्यूस. मैंने कहा कि आपको, आप पहले आपके पास एक रोबोट होता था, आप सारा रोबोट भरते थे शेल्फ के अंदर. अब हमने कहा नहीं, आप एक काम करो, इस रोबोट के टुकड़े करो आप. अब इसको ब्रेकेबल बनाओ, इसकी आर्म अलग करो, हेड अलग करो, पाँव अलग करो, ये करो, और उसी हिसाब से बिल्कुल सेम साइज के करो, और उसी हिसाब से आप यहाँ पे रैम के अंदर फ्रेम्स बनाओ. यानी कि जो आपकी जॉब है प्रोसेस, नवीद कादरी, यू गॉट टू कीप योर कैम ऑन और आई एम गोइंग टू रिमूव यू. ओके, 2-3 दिन में देखूंगा, क्योंकि मैंने अभी रिमूव नहीं किए ग्रुप में से, और ना ही मैंने उसमें से, क्योंकि मेरा काम ग्रुप में रिमूव करने का नहीं है, ऐड करने का है, लोगों को जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं है बेसिकली. लेकिन दैट इज व्हाई आई हैव नॉट डन इट यस्टरडे. आई एम वेटिंग फॉर, क्योंकि हर एक बच्चे को मेरे से फायदा आना चाहिए. दैट्स व्हाट्स द टीचर वांट्स. टीचर वांट्स कि लोगों को फायदा है, बच्चों को अच्छे मार्क्स मिले, बच्चे को कॉन्सेप्ट हो. मेरा काम ये नहीं है कि बेसिकली कि टू रिमूव द पीपल, स्टूडेंट्स. मेरा काम असल में ये है कि टू गेट द स्टूडेंट्स इन. कभी कभार क्या होता है ना, जब आप पतंग चलाते हो, जब आप पतंग ऊपर उड़ाते हो, उसको आप ऐसे नीचे खींचते हो, ऐसे ऐसे करते हो आप, ताकि वो ऊपर जाए. जब आप ऐसे नीचे खींचते हो ना, उस नीचे खींचने का मतलब ये नहीं कि आप पतंग को नीचे करना चाहते हो, उसका मतलब ये होता है कि आप उसको ऊपर करना चाहते हो. ठीक है, तो कभी कभार स्टूडेंट्स के ऊपर ये करना पड़ता है ताकि वो ऊपर चढ़े, ताकि वो अब ऊपर आए, स्टूडेंट्स ऊपर आए, उनके लिए थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ती है. वरना ये मकसद नहीं होता कि मैं स्टूडेंट को रिमूव करूंगा यहाँ से वहां से. इट डजंट मेक एनी सेंस. चाहे वीक स्टूडेंट हो, चाहे इनडिसिप्लिन स्टूडेंट हो, सारे बच्चे अपने ही होते हैं. जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, एक तेज भी हो सकता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको फेंक दूंगा. हाँ, उसको थोड़ा सा काम करना है ताकि वो भी ट्रैक पे आए. ठीक है ना, तो इसलिए मैंने रिमूव किसी को नहीं किया अभी. सो आई वांट एवरीबॉडी टू join, and inshallah everybody will behave well. Naveed Qadri, I am telling you last time, why are you not opening up your camera? He is talking, sir, it shows unable to access camera. You are a technocrat, you should be able to have the device drivers and all. So it shouldn't be problem for you to open the camera. So do it, fix it quickly. Anyways, now what I'm saying is that we are saying now that we have the process, okay? We have the process, any processes which are coming up, we divide that processes into frames. So this is my process, this was process 1, for example. I divide that into the frames. Let's say I keep it in the P0, P1, P2, P3, and P4. Okay, I divide them into the processes, into different processes, into the what's called the pages. I call them as a pages because I told you pages is a concept with the process. Okay, not with the RAM. And in the RAM, what you call as the main memory, basically primary memory or main memory, I create frames. And these frames are same size of pages. These frames are same size of the pages. Because I don't want internal fragmentation, I don't want external fragmentation, I don't want anything. And I should have a flexibility to low, because of that when the process come and go, there यहाँ पे जगह खुली, यहाँ पे जगह खुली, वहाँ पे जगह खुली, तो मुझे compaction करना पड़ रहा था. I should not need to do compaction. So मुझे इन चीजों पे काम करना है. I have to work on internal fragmentation, I have to work on external fragmentation, I have to work now on compaction also. I shouldn't be doing compaction. जो मुझे जब मुझे प्रोसेस आती जाती थी ना, तो फिर यहाँ पे छोटी जगह हो रही, यहाँ पे छोटी जगह, अब मुझे कंपैक्शन नहीं करनी चाहिए. मुझे वो तब पॉसिबल है जब मेरी प्रोसेस के टुकड़े कहीं पर भी फिट हो सकते हैं. ठीक है ना. अब देखें मेरे फ्रेम्स यहाँ पर हैं, ये ऑक्यूपाई हो गए. मैं उल्टा पेन पकड़ रहा हूँ. ठीक है, ये फ्रेम्स हैं, मैंने किया इनको ऑक्यूपाई. फिर कुछ टाइम के बाद ये फ्री हो जाएंगे ना. अब यहाँ फ्री हो गया, कुछ यहाँ फ्री हो गया, वहां फ्री हो गया, मानो यहाँ फ्री हो गया, यहाँ फ्री हो गया, यहाँ फ्री हो गया. So I should be able to put this P0 here, put this P1 here, put this P2 here. I can load it anywhere.
बिकॉज दिस इज नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। समझ, अब आपको समझ आएगा कि कॉन्टिग्यूअस और नॉन कॉन्टिग्यूअस क्या फर्क है। पहले बार जो प्रोसेस P1 थी वो सारी की सारी लोड करनी एक ही जगह थी। अब हमने प्रोसेस P1 के टुकड़े कर दिए, पेजेस बना दिए। वो पेजेस में मेमोरी के फ्रेम्स में कहीं पर भी लगा सकता हूँ, एक इधर लगाया, एक इधर लगाया, एक इधर लगाया, जिधर मर्जी लगाओ, जिधर जगह मिली उधर लगाओ। डज इट मेक सेंस व्हाट आई एम सेइंग? जिधर आपको जगह मिलेगी उधर लगाओ, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशनल एक टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि याद तो रखना पड़ेगा ना कौन कहाँ पे पेज कहाँ पे रखा, किस पेज को किधर डाला हमने, किस फ्रेम में डाला। So we should be able to know it. So how we remember this thing? Using the page map table. So we have the PMT, page map table. So we have the page map table which will tell us which frame is where. Does it make sense? Because we need now na page map table to tell us where which page. देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें गुंजाइश ही नहीं है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की। क्या इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में हो सकती है? Can anyone tell me? Raise your hand. क्या इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकती है? साहिल बी से saying something. साहिल आप ओपन करो माइक, यू से, मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन। ask to unmute, yeah साहिल। सर पेजेस और चंक्स को में डिवाइड करते हैं हम इसको। सर आई हैव रेड चंक्स समथिंग। प्रोसेस को? यस नो सर, यस सर, यस प्रोसेस को ही हम करते हैं ना चंक्स में डिवाइड। No, फ्रेम्स pages. This is technical word. This is not just an ordinary word. Chunk is an common English word, right? We could say chunk to something else, but chunk is not a technical word. Page is a technical word, okay? Because this model is called page memory allocation. Okay, so we divide the process into the pages. Now what I'm saying is कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें internal fragmentation होगी क्या? सर नहीं हो सकती। साहिल सिंह नहीं हो सकती है, सबका आंसर यही होना चाहिए, नहीं हो सकती है, लेकिन हो सकती है थोड़ी सी, क्योंकि वो मैं बताऊंगा आपको, जिसके ऊपर अभी दिमाग नहीं जा रहा है आपका। क्योंकि जब आपने प्रोसेस को डिवाइड किया ना पेजेस में, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड देम एग्जैक्टली इनटू द ऑल द पेजेस। जैसे फॉर एग्जांपल 4 पेजेस में इसको मैंने डिवाइड किया, जो फ्रेम की साइज है, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल कि एवरी प्रोसेस विल डिवाइड नो बराबर वो पेज की साइज लास्ट में थोड़ा सा बच सकता है ना। जैसे ये फोन का साइज इतना है, ठीक है ना, दूसरे फोन का साइज छोटा है, ठीक है, इससे थोड़ा सा छोटा है। अकॉर्डिंग टू द पेज ही फ्रेम करते हैं ना हम करते हैं अकॉर्डिंग टू द पेज फ्रेम। मान लीजिए मैंने इसके 2 सेंटीमीटर्स काटने, 2 सेंटीमीटर्स, ठीक है, मैं 2 सेंटीमीटर के काटूंगा इसको और बनाऊंगा यहाँ से फ्रेम्स 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये जरूरी मत है कि ये मल्टीपल ऑफ 2 आएगा, हो सकता है ना कि ये लास्ट में 2.1, सो 0.1 कुछ ज्यादा हो जाएगा, लेकिन उस 0.1 के लिए मुझे फ्रेम तो देना पड़ेगा ना 2, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए मैंने 2 सेंटीमीटर्स के इसको काटे पेजेस। दैट मींस अगर पेजिंग बराबर होगी तो फ्रेम्स में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं हो सकती, नहीं होगी, बट इट इज नॉट पॉसिबल। ईच एंड एवरी प्रोसेस कैन नॉट डिवाइड एग्जैक्टली लास्ट में, बिल्कुल थोड़ा सा कभी बच सकता है, बच सकता है ना, वो थोड़ा लास्ट का पेज जो मैं काटा हूं, उसका 2 लास्ट में 1 ही सेंटीमीटर बच गया या कुछ पॉइंट ही बच गया, लेकिन वो डालना किसमें पड़ेगा, पेज में ही या फ्रेम में ही। सो फ्रेम तो हमने बिल्कुल 2 सेंटीमीटर ही रखे हैं सारे। अब मैं सेंटीमीटर बता रहा हूँ, ये सेंटीमीटर नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो साइज, जिस साइज का मैंने पेजेस काटे, उसी साइज का मैंने फ्रेम्स बनाए, लेकिन लास्ट में हर प्रोसेस को थोड़ा सा बच सकता है, सो इसलिए वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, बट दैट्स वेरी नेग्लिजिबल। वो लास्ट की छोटी सी ये हो सकती है, ठीक है ना। ओके, सो इसको पेज मैप टेबल बनाना जरूरी क्यों? क्योंकि पेज मैप टेबल बताएगा कौन पेज किधर है, लेकिन उसमें फायदा भी आएगा आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले मैं देखूंगा एड्रेसिंग कैसे हम करेंगे, इसकी मैपिंग कर सकते हैं कहां पे क्या कौन सा फ्रेम जाएगा। जैसे ये सीपीयू है यहाँ पे, दिस इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड ये एक एड्रेस जनरेट करेगा, ठीक है, उसके 2 हिस्से होंगे, P and D, और समटाइम्स राइट P and W। व्हाट इज दैट P and W? ठीक है, सो ये P है, इट इज अ पेज, एंड W इज द ऑफसेट। व्हाट डज दैट मीन? बेसिकली जो आपकी रैम है यहाँ पे, इसमें फ्रेम्स है, रैम के अंदर फ्रेम्स है,
समझ आ रहा है सबको? तो ये फ्रेम्स हैं, और कहीं पर आपको फॉर एग्जाम्पल ये जो वाला फ्रेम है, ये जो वाला फ्रेम है, इसके अंदर मेरा डेटा है जिसको मुझे एक्सेस करना है, या इंस्ट्रक्शन है, क्या है मेरे पास, आई हैव दैट हियर, ओके, दिस लाइन, दिस पीस ऑफ लाइन। अब ये वाला जो फ्रेम है, इसका एड्रेस मुझे पता होगा, ठीक है, ये जो वाला पेज फ्रेम है इसका मुझे एड्रेस पता होगा, लेकिन जैसे मैंने कल आपसे कहा कि BCA क्लास है, पहले क्लास का पता होना चाहिए, उसके अंदर लाइन नंबर, कौन सी लाइन, और उसके अंदर काजिम बैठा है 6th जगह पे। इसी तरीके से ये मुझे क्लास नंबर मिल गया, और इसके अंदर अब कौन सी लाइन, दैट इज कॉल्ड एज एन ऑफसेट, दैट्स कॉल्ड एज व्हाट, ऑफसेट। ये W वही ऑफसेट है, दिस W इज दिस ऑफसेट। लेकिन ये फ्रेम किधर है, ये किसको पता होगा, पेज मैप टेबल को। दिस इज द पेज मैप टेबल, हु नोज विच फ्रेम हैज विच पेज, प्रोसेस का कौन सा पेज किस फ्रेम में आपने लगाया, वो PMT को पता है। सो दैट मीन्स वो यहाँ पे वो एड्रेसेस होंगे उनके, ठीक है, और जो ये पेज है, यहाँ से ये जो पेज है ये इसमें जाएगा, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 10, सो ये पेज नंबर 10 के पास जाएगा, और यहाँ पे लिखा होगा कि पेज नंबर 10 जो है वो किस फ्रेम में डाला हुआ है रैम के अंदर, उसका एड्रेस क्या है, ठीक है ना। सो यहां से मैं एक्सेस करूंगा वो वाला पेज, इसमें लिखा होगा जैसे 012, ये सेकंड पेज के अंदर है, सॉरी सेकंड फ्रेम के अंदर, क्योंकि ये फ्रेम बताएगा ना, यहाँ पे ये बताएगा फ्रेम, कौन सा फ्रेम, सेकंड फ्रेम में है। और पहले, इससे पहले मैं ये करूंगा, मुझे ये, क्योंकि ये मुझे बताएगा कौन सा फ्रेम है, बट आई हैव टू add this offset to it, I have to add this offset to it, get exactly this line of code। समझ में आ रही है? देखिए सिंपल है, CPU ने बताया कौन सा जो उसका एड्रेस होगा, उसके 2 हिस्से असल में होंगे, it has a two parts of the address, one part will tell us page number, the page number will go into the PMT to see which page number, say for example यहाँ पे 10 लिखा है, so it will go to the 10 page number, ठीक है ना, it will go to the 10th page number। यहाँ से कुछ क्वेश्चन आ रहा है, इंफॉर्मेशन कैसे होगी क्योंकि पेजेस भी हम वेरिएबल हिसाब से बना सकते हैं। आई थिंक आई हैव आंसर्ड दैट। उतूफा, यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? उतूफा, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसका आंसर मिल गया आपको, या अभी है कोई डाउट्स? सर मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो आपने वो कंपैक्शन वाला बताया, हाँ, उसमें आपने बोला कि उसमें प्रोसेस में थोड़ा टाइम जाता है, तो वो उसमें सफाई करता था तो उसमें वो ज्यादा टाइम जाता था। सफाई मैंने ऐसी बोला, सफाई नहीं, एक्चुअली वो मतलब जी जी टेक्निकली बोलो ना, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए कुछ भी, जी जी यानी जी, कि तो हाँ, वही, फ्री हाँ स्पेस वही, एक साइड और हाँ हाँ ऑक्यूपाइड स्पेस एक साइड। हाँ जी, तो फ्री स्पेस करने में भी वो प्रोसेस में टाइम लेता था, लेकिन यहाँ पे भी जो हम इसके फ्रेम्स बना रहे हैं, पेज बना रहे हैं, इसमें भी तो टाइम जा रहा है, तो डिफरेंस ये क्या? जो पेजेस हम बना रहे हैं और ये जो हम फ्रेम्स बना रहे हैं ना, ये पहले ही बनेगा, अभी सिस्टम बूट भी नहीं हुआ, सिस्टम बूट हो रहा है उसने बना दिया ये, ठीक है, जब प्रोसेसिंग जी हो रही है तब नहीं बना रहे। ठीक ठीक, जो वो वाली कॉम्पैक्शन जो हो रही है वो हो रही है रन टाइम पे, हम कर रहे हैं काम। ये ऐसा है कि आपने शेल्फ्स बना दिए हैं और आपने अपनी प्रोसेसेस के टुकड़े कर दिए हैं, जो ही प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम ने बनाई उसने इसके पेजेस बना दिए, ठीक है। अब हमें सिर्फ लगाने हैं, अब हमें सिर्फ, लेकिन जो वो वाली प्रोसेस थी जो आपका जो हम कंपैक्शन कर रहे थे, उसमें क्या था, पहले रैम उसमें कुछ नहीं बना था, वो खाली थी। फिर जब प्रोसेस यूं ही आती है उस हिसाब से हम डब्बा बनाते हैं, शालुप बनाते हैं, ठीक है ना। अब उसमें जब आगे पीछे हो गया तो फिर अब जगह ही नहीं है, जगह उधर है एक थोड़ी सी, एक इधर है, क्योंकि स्कैटर हो गया सारा, ठीक है ना। अब ऑपरेटिंग अब जगह तो है खाली, इधर थोड़ी सी, इधर थोड़ी सी। अब प्रोसेसर क्या करेगा काम, वो बोलेगा यार, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेगा उसको, ठहर यार तू काम छोड़, पहले इसको मैं एक जगह करूंगा। हम क्या करें तब तक बैठ रहे हैं, है ना। तो वो क्योंकि वो रन टाइम पे हो रहा है ना, डायनेमिक हो रहा है। ये जो आप जो देख रहे हो ये किस्सा, ये पहले ही एडवांस में हो चुका है। जब 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 आपकी प्रोसेस रन होगी तो उस वक्त नहीं करना कुछ, उस वक्त सिर्फ डालना है, ठीक है ना। हाँ, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने पेज में एग्जांपल दी थी रोबोट की, तो जो
के पार्ट्स होंगे वो सब डिफरेंट साइज के होंगे। नहीं वो तो मैंने मतलब जस्ट मैंने एग्जांपल उस दी थी। वेट मैंने आपको बताया भी, अगर इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया भी कि वी हैव टू डिवाइड देम इनटू सेम साइज। मैंने सिर्फ समझाने के लिए वो बताया, रोबोट जो बताया मैंने समझाने के लिए। उसका हेड बड़ा होगा, आर्म लंबी होगी, वो नहीं। हाँ, तो मतलब पेज भी तो that मतलब was जो भी no हम no 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 कंटेंट डाल रहे हैं तो that पेज is not भी a good और analogy. That's not a good analogy, because I was telling that as in just an example that we can break that robot into put that into the different non contiguous locations. देखिए यहाँ पे सेम साइज हम करेंगे, जो ही इसका साइज होगा किसका, प्रोसेस, क्योंकि हमारे पास प्रोसेस है ना। जैसे मेरे पास ये फोन है, मानो एक प्रोसेस है, मैंने इसके बिल्कुल टुकड़ी का, अब मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ 2 सेंटीमीटर, अब वहां पे 2 सेंटीमीटर नहीं होगा ना, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अच्छा, ये जो 2 सेंटीमीटर की मैं काट रहा हूँ ना इसको, प्रोसेस को, यही 2 सेंटीमीटर में फ्रेम्स बनाऊंगा किसमें, जैसे पीछे आप ये देख रहे हो कबर्ड, जी जितना इसको मैं पीस करूंगा उतना ही मैं शैलो बनाऊंगा। अब मैं ये पीस उठा के कहीं पे भी डाल सकता हूँ, यहाँ पे डाला, यहाँ पे डाला, वहां पे डाला। सो मुझे नॉन कॉन्टिग्यूअस है, मैं कहीं भी डाल सकता हूँ। लेकिन इसमें थोड़ी सी अब क्या होगा कि लास्ट में जो है ये, बिकॉज अगर मैंने 2 सेंटीमीटर का काटा, मानो लास्ट में आ गया ये 2-3, इसमें एक 3 सेंटीमीटर लास्ट में आ गए, 2 काटे 1 बच गया ना, अब वो 1 ही सेंटीमीटर है, लेकिन डालना पड़ेगा ना उधर से स्पेस वही 2 सेंटीमीटर की है, ठीक है ना। तो मैं वो 1 डालूंगा किसी में, तो वहां थोड़ी सी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकती है। तो सर जो आपने बोला कि हम मतलब जो पेज है वो कहीं पे भी मतलब अलग अलग पार्ट्स उसके डाल सकते हैं, तो वो तो Yes. रन टाइम पे ही होगा ना, दैट मीन्स उसमें भी वो टाइम खाएगा ढूंढने में कि अब हमें ना ढूंढना है, ये frame ढूंढना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उसमें भी हम बताऊंगा मैं क्या करेंगे। लेकिन उसके लिए पेज मैप टेबल आपको है ना यहाँ पे, जो जी। पेज मैप टेबल आपको है यहाँ पे, लेकिन है थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो आप बता रहे हो, दैट इज वेरी गुड, बिकॉज दैट्स व्हाई वी मूव ऑन टू द सेगमेंटेशन and we then move on to the page segmentation. I will tell you later on, but that is a good point, you are telling true, but it is still better, क्योंकि इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं हो रही है वो ज्यादा उतनी सारे, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कोई बात ही नहीं है। और इसमें क्या बोलते हैं इसको, कंपैक्शन फ्रेगमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और इसमें एक और बेनिफिट है कि आप अगर रीयूजेबल प्रोसेसेस हैं, अगर आपके पास 2 प्रोसेसेस हैं, जैसे फर्ज कीजिए, पहले ये समझो आपकी सीपीयू में कर रहा था काम, बिकॉज़ वी हैव ओनली 7 मिनट लेफ्ट। सीपीयू जो है इट जनरेट्स 2 एड्रेसेस, पेज टेबल, पेज एंड ऑफसेट। सो पेज मैप टेबल जैसे 10 है तो पीएमटी में जाएगा, पेज मैप टेबल एक होगा हमारे पास, टेबल बना होगा, आपको सिर्फ एड्रेस देखना है कहां पर है। जैसे इस अलमीरा कबर्ड में मेरे पास बुक है, ये कहां पर है, मेरे पास यहाँ टेबल लगा है, मैं यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मुझे बुक नंबर ये चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, आई एम सीइंग इट्स ऑन फ्रेम नंबर 10, सो आई गो फ्रेम नंबर 10 क्विकली, I had to only look up. Okay, it doesn't make, we can build this in a hardware to make it very fast. Okay, I will tell you how we do that, but firstly you understand this thing कि page map table में क्या है। page map table में जो भी पेज आएगा वो कहाँ पे रखा मैंने, फ्रेम के अंदर, रैम के फ्रेम के अंदर, उसका एड्रेस यहाँ पे होगा। So what will PMT give us? The frame number, the frame मगर इस फ्रेम में कौन सी इंस्ट्रक्शन या कौन से डेटा के कहां पे किसकी बात हो रही है वो ये ऑफसेट बताएगा। Offset will tell us, say offset will be like 5, so it will add 5 to this base address and it will go exactly where we want to go. Does it make sense, this one? Yes. If any other guys have a question, do ask, don't worry, let us make a discussion out of it. It's a very good thing if we discuss, it shouldn't be one way. Okay, you should ask a question like Otufa is asking questions, it's very good, I appreciate Otufa, that's very nice, keep it up. Okay, keep it up, keep discussing. अब जो ये पीएमटी है ना, मैं कहीं पर भी लगा सकता हूँ इसको। पहले हमने क्या किया काम, इसको बहुत ही फास्ट डेडिकेटेड सर्किट्स दे दी ताकि इसमें बिल्कुल टाइम लगे, जो तुमको को अप्रीहेंशन किसमें टाइम लगेगा, इसमें बिल्कुल भी टाइम ना लगे। तो हमने कहा कि ना इसको डेडिकेटेड सर्किट दें, लेकिन चूंकि प्रोग्राम्स बढ़ते गए, रैम्स बढ़ती गई, बड़े बड़े प्रोग्राम्स आते गए, सो इसका डेडिकेटेड सर्किट बनाना मुश्किल हो गया। सो वी कुडंट मेक द डेडिकेटेड सर्किट्स। तो पहले डेडिकेटेड सर्किट ही बना रहे थे हमने कहा नहीं। तो फिर हमने क्या कहा, क्योंकि पेज मैप टेबल बड़े बनते गए, पीएमटी बिग, बिकॉज अब हमारे पास इतनी किताबें नहीं है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी हो गई, सो वी कुडंट मैनेज इट यूजिंग डेडिकेटेड सर्किट्स। सो जैसे सर्किट हो गया कि बुक ढूंढी, जैसे कैलकुलेटर की तरह बटन दबाया वो बताएगा सर्किट बराबर होगा उस फ्रेम के पास, वो ले जाएगा हमारे फ्रेम के पास। अब हमने रैम के अंदर पीएमटी बना दिया, पेज मैप टेबल्स इन द रैम, ठीक है ना, हम रैम के अंदर। तो अगर हमें एक्सेस करना है डेटा इन अ रैम, फर्स्ट वी हैव टू एक्सेस द PMT, पेज मैप टेबल, इन द रैम इटसेल्फ, व्हिच विल लीड अस टू द
कि रैम के अंदर कौन सा फ्रेम है, ठीक है ना, बिकॉज रैम के अंदर फ्रेम है, PMT will tell us which page belongs to the process, that page of a process, where is it. उसके बाद इसमें थोड़ी सी स्पीड की भी फिर से प्रॉब्लम हो गई, तो हमने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ी PMT टेबल्स बहुत बड़े बनते गए, तो हमने कहा कि इनको एक कैश दी जाए, एक कैश दी जाए, कैश मेमोरी, एसोसिएटिव कैश, व्हाट इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव कैश दी जाए, ओके। इसको हम ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर भी कहते हैं, ओके, TLB, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। अब या तो TLB आप दे दो इसको, या इसको एसोसिएटिव कैश भी कहते हैं, उसमें से PMT का एक हिस्सा इसमें जाएगा, कुछ हिस्सा इसमें जाएगा, ठीक है, और बाकी जो PMT है वो रैम में ही रहेगा। तो हमारे पे दो लेवल्स आ गई कि अगर CPU को अब एक्सेस करना है क्या आपकी फ्रेम, इट विल सी द TLB, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, ओके, जो कैश है, एसोसिएटिव कैश है, उसमें दिखेगा कि उस पेज का फ्रेम किधर है। तो अगर उसमें मिला तो वो डायरेक्ट जाएगा रैम के ऊपर, तो करेगा काम, इट विल बी वेरी फास्ट। कभी कभार नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हमने आधा ही उस पेज मैप टेबल का कुछ ही हिस्सा हमने रखा है इस TLB में, ठीक है ना, तो उसका मतलब है इसमें फॉल्ट भी आ सकता है कि उसमें है नहीं, तो देन इट कैन एक्सेस द ओरिजिनल PMT, पेज मैप टेबल, इन द रैम टू एक्सेस इट। डज इट मेक सेंस? लेकिन इसमें अब एक इशू है कि जो एज ए प्रोग्रामर, जो आज तक हमने सीखा है कि वी हैव टू हैव अ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, वी बिल्ड फंक्शंस, वी हैव द रेफरेंस ऑफ लोकेलिटी, जो हम पढ़ रहे थे, तो जो हम इसकी बात करते हैं कि हमारे पास फंक्शंस होते हैं, बिकॉज एज ए प्रोग्रामर वी डोंट सी एज ए पेजेस, it was abstract concept for the programmer, it's abstract concept, because we don't work on pages, we work on the whole program, we work on functions, we work on modules, है ना। एज ए प्रोग्रामर वी वर्क ऑन व्हाट, आपको मेन फंक्शन है, आपने एक ऐड की फंक्शन बना दी, आपने एक स्क्वायर रूट की फंक्शन बना दी, आपने एक स्टैक बना दिया, उसके ऊपर काम कर रहे हैं आप। एज ए प्रोग्रामर वी सी दीज थिंग्स, वी डोंट सी उसके टुकड़े और उसने क्या किया, वो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद कर रहा है। तो बहरहाल एज ए प्रोग्रामर वी सी एज द what is called as the technical term segments, we call them as a segment, ठीक है। इवन अगर आप असेंबली लैंग्वेज पढ़ोगे वहां हम सीधे सेगमेंट ही लिखते थे, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट एंड ऑल, ठीक है ना। तो यानी कि जो भी हम काम करते हैं एज अ प्रोग्रामर, वी सी एज अ मेन फंक्शन और व्हाटएवर फंक्शंस, वी सी देम एज अ बंच ऑफ सेगमेंट्स। सो हमने कहा कि नहीं सर, हमें सेगमेंट चाहिए, हमें पेजेस नहीं चाहिए। तो हमने क्या काम किया, हमने सेगमेंटेशन कर दी, क्या दी, कर दी, we did segmentation, ठीक है। अब ध्यान रखो, कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखो, बिकॉज इसके नोट्स में देखूंगा और फिर मैं थोड़ा सा उसके ऊपर फिर से ब्रश अप करूंगा, ताकि ये परफेक्ट बने। तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, जब तक ये परफेक्ट नहीं बनेगा। तो सेगमेंटेशन में हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई एज ए प्रोग्रामर हमारे पास मेन प्रोग्राम है, हमारे पास ऐड फंक्शन है, हमारे पास स्टैक है, ठीक है, हमारे पास स्क्वायर रूट की फंक्शन है, मेरे को ऐसा चाहिए, I need that thing, so I created segments, so we created segments in a RAM. We created what, this is OS, we say segment for main, segment for this, segment for this function, segment for this function of different sizes maybe, but this lead to the external fragmentation, क्योंकि एज ए प्रोग्रामर मैं चाह रहा हूं कि ऐसा हो भाई, सेगमेंट्स में हो, लेकिन जो अभी तक हम मेमोरी मैनेजमेंट में काम कर रहे थे तो वो सारा फेल ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे फिर से वही किस्सा हो गया एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की, है ना। तो हमने कहा कि नहीं, दोनों चाहिए। एज ए प्रोग्रामर जो हम चाहते हैं सेगमेंट्स, लेकिन जो हमने अभी सीखा क्या, कि हमने सीखा कि हम पेजेस अगर बनाएंगे, फ्रेम्स बनाएंगे उस हिसाब से रैम के अंदर, उससे बड़ा फायदा आ रहा है, ठीक है ना। तो दोनों का मिलके कुछ होना चाहिए, दोनों होने चाहिए। सो वी गॉट व्हाट्स कॉल्ड एज एन सेगमेंटेड पेज मैनेजमेंट सिस्टम। सो उसमें सेगमेंटेशन भी आएगी और उसमें पेजिंग भी आएगी, उनको मिलाया हमने, सेगमेंटेशन और पेजिंग को मिलाया हमने। इससे पहले कि हम ये करें सेगमेंटेशन प्लस पेजिंग, इससे पहले हमें डिमांड पेजिंग करनी चाहिए थी, जो मैं भूल गया। वी हैव टू हैव डिमांड पेजिंग। सो व्हाट इज डिमांड पेजिंग, बिकॉज मेरे पास 1 मिनट है, ये भाग जाएगा अभी, ठीक है। आई विल नॉट टॉक अबाउट दिस थिंग बिकॉज इट विल बी ऑफ नो यूज। इफ एनीवन हैज अ क्वेश्चन, he or she can ask,
और because ये भी भाग जाएगा ना, it will stop of his own. Anyone having question? Otufa, are you having any question? No, sir. Tabia Wani, Itrat, Afreen, you should be asking question. Make questions. Don't abhi question nahi aaya. Make questions.